स्टार्ट करते, ठीक है। ऐसा दिया हुआ इन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर पे, देन स्क्रू गॉज स्टार्ट करेंगे। स्क्रू गेज जो इन वर्नियर कैलिपर, इन वर्नियर कैलिपर्स end divisions of end divisions of vernier scale coincide with n minus 1 divisions of main scale of main scale in which length of a division in which a length of a division is 2 mm. Find the least count. Find the least count of vernier caliper. Least count. ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें 2n है, 1 division on main scale equals to 2 mm. Find the least count of vernier caliper. बताइए लिस्ट। किसी का कुछ आंसर आया क्या इसमें? यहाँ पे क्या है, n VSD equals to n minus 1 MSD. तो 1 VSD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 VSD equals to n minus 1 by n MSD. तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट LC equals to 1 MSD minus 1 VSD. यहां से क्या आएगा यार? 1 MSD minus n minus 1 by n MSD. तो यहां से ये वाली लीजिए n MSD minus n minus 1 MSD अपॉन n. n से n जाएगा तो ये हो जाएगा 1 MSD by n. 1 MSD क्या है? 2 mm. 2 by n mm. 2 by n mm. 2 by n mm. Clear? While measuring the length of the rod by vernier calipers, the reading on main scale is 6.4 centimeter, and the eighth division
8 division on vernier scale, 8 division on vernier is in line with marking on main scale, marking on main scale division, if the least count of calipers is 0.01 centimeter and zero error is minus 0.04 centimeter, then find the length of the rod. Then find the length of the rod. Six point 44 centimeter. 6.44 आंसर नहीं है. Sir, 6.52 will be the answer. 6.52 centimeter is the correct answer. 6.52. क्या हो जाएगा? पहले n प्लस n इंटू एल सी माइनस जीरो एरर, n इंटू एन प्लस एल सी माइनस जीरो एरर, वो फॉर्मूला लगाएंगे और जीरो एरर नेगेटिव है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. डन. तो यहां से क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रॉड क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द रॉड ये आ जाएगा आपका n इंटू n प्लस n इंटू एल सी माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? 6.40. ये n कितना है? 0.01 इंटू एल सी, सर n इज 8, एल सी की वैल्यू 0.01 माइनस 0.04 सब सेंटीमीटर में, ये 6.40 प्लस 0.08 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.04, तो कितना आ जाएगा ये? 6.52 सेंटीमीटर. क्या जाएगा? 6.52 सेंटीमीटर, 6.52 सेंटीमीटर. जीरो एरर हमेशा क्या होगा? सबट्रैक्ट, तो माइनस लगा दिया और जीरो एरर खुद से नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्लियर है? डन.
ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 centimeter when the two jaws of the instrument when the two jaws of the instrument touch each other, the fifth division of the vernier scale coincide with the main scale and the zero of the vernier scale and zero of the vernier scale lies to the left of the zero of the main scale देखो इतना स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, लीस्ट काउंट तो गिवन ही है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक का है, when the two jaws of the instrument touch each other, the fifth division of vernier scale coincide with the main scale and the zero of the vernier scale lies to the left of the zero of the main scale. ये पूरा स्टेटमेंट किसके लिए है? जीरो एरर के लिए। यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा? जीरो एरर की वैल्यू फाइंड करेंगे इस स्टेटमेंट से, है ना? Because when the two jaws of the instrument touch each other, टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या फाइंड कर रहे हैं आप? जीरो एरर। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए है? जीरो एरर के लिए। एक ही यहाँ से यहाँ तक के लिए सिर्फ एक जीरो एरर का फार्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट इतना दिख रहा है। नेक्स्ट, furthermore while measuring the diameter of a sphere while measuring the diameter of sphere, the zero mark of the vernier scale lies between 2.4 centimeter and 2.5 centimeter, and the sixth vernier division coincides with the main scale division यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यहाँ से furthermore while measuring the diameter of sphere, यहाँ से आप मेजर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे n plus n into LC वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से आप जीरो एरर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट the diameter of sphere, calculate the diameter of sphere। Sir, is answer 2.51? कितना आ रहा है? 2.51. करेक्ट, 2.51 करेक्ट आंसर। कॉपी कर
सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? जीरो एरर। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? जीरो एरर। तो जीरो एरर कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। व्हेन द टू जॉस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट touch each other, the fifth division of the Vernier scale coincides with the mean scale, and the zero of the Vernier scale lies to the left of the zero of the main scale. मतलब अगर ये मेन स्केल है, इसका जीरो यहाँ पे है, तो वर्नियर स्केल का जीरो इस साइड है। तो यहाँ से जो एरर आएगा वो नेगेटिव जीरो एरर आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू भी पहले ऐसे, जीरो इसका इस साइड है तो ये वाला वन होगा, वन तो माइनस लिख देते हैं, -1 mm, है ना? तो -1 mm प्लस एन की वैल्यू कितनी है? फिफ्थ। एलसी कितना है? 0.1 mm। सेंटीमीटर को mm में कर दो, बाद में मैं चेंज कर दूंगा इसको सेंटीमीटर में। ये आ जाएगा 0.5 mm। तो ये गया -1.5 mm। सेंटीमीटर में क्या जाएगा? 0.15 mm। करेक्ट है क्या? सेंटीमीटर। सही किया ना मैंने? सर -0.5 होना चाहिए। माइनस आएगा, करेक्ट, -0.5। तो 0.05 आ जाएगा। -1 mm प्लस है ना, तो माइनस आ जाएगा। -0.5 mm मतलब -0.05 सेंटीमीटर। -0.05 सेंटीमीटर। कॉपी कर लीजिए इसको। डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा। यहाँ से देखिए, ये वाला, ये जब आप मेजर कर रहे हैं डायमीटर, तो उस केस में 2.5 सेंटीमीटर टू 2.4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर के, है ना, मिड में कहीं पे लाई कर रहा है वो। इसका मतलब कैपिटल एन की वैल्यू 2.4 होगी। और उसके बाद क्या बोला? सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। सर एक मिनट कैन यू शो दैट? डन। तो यहाँ से जीरो एरर की वैल्यू माइनस नेगेटिव आ गई। अब डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पे यहाँ से डायमीटर क्या आ जाएगा? डायमीटर ऑफ वायर ऑफ स्फीयर n प्लस n इंटू एल सी माइनस जीरो एरर। n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? जो डायमीटर है तो वो ग्रेटर देन 2.4 सेंटीमीटर है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली वैल्यू n हो जाएगी। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? n, है ना? ये जो है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? n, ये 2.4 सेंटीमीटर। तो ये वाली वैल्यू n हो गई 2.4 सेंटीमीटर। और ये n क्या है? सिक्स्थ कोइंसाइड कर रहा है। एलसी की वैल्यू क्या है? 0.01 सब सेंटीमीटर में, माइनस -0.05। तो ये जाएगा 2.4 प्लस 0.06 प्लस 0.05। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.51 सेंटीमीटर। तो देखो, क्वेश्चन दिखने से लग रहा है क्या है, बट सॉल्यूशन सा सिंपल है, सिंपल। इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। क्लियर? एक और क्वेश्चन, वन सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल of a vernier caliper
calipers is divided into 10 divisions. 10 divisions. The least count of the calipers is 0.005 centimeter. Find the number of divisions on vernier scale. Find the number of divisions on vernier scale. Vernier scale. Find this. Yes. वो आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, जैसे ये ऐसा था, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है वर्नियर कैलिपर, यहाँ से यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का 0 है, तो ये वाला जो लेंथ है ये, अब देखिए सपोज ये ऐसा है, ये ऐसा, ये 5, ये मान लीजिए 5 mm है और ये 6 mm है, तो ये 0 जो है इसका कहाँ लाई कर रहा है, 5 mm to 6 mm, तो कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 mm। कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 mm। जो रेंज आएगा जो आप लोग यहाँ पे कि किसके किसके बीच लाई कर रहा है, तो वहां पे जो मिनिमम आएगा वही हो जाता है N। N क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑफ वर्नियर स्केल, जस्ट बिफोर टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑफ वर्नियर स्केल। इसलिए आप वहां जो रेंज आएगा उसमें जो मिनिमम दिखेगा वो आपको कैपिटल N कंसिडर। 20 डिविजन आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो LC की वैल्यू क्या होती है, 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ये भी होता है एक बार। तो LC की वैल्यू यहाँ है 0.05 है, 0.05 सेंटीमीटर, तो 0.05, 1 MSD की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड 10 डिविजन्स, तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 MSD क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो आप इसको इस साइड लाइए, तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल क्या आ जाएगा यार, इसको इस साइड, ये इस साइड, वर्नियर स्केल, ये क्या आ जाएगा, 1/10 इंटू 0.05। रॉन्ग किया क्या मैंने, डबल 0, तो यहाँ पे इसको हटा दो, 1000 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 50, तो आंसर आ जाएगा 20 डिविजन्स। आंसर क्या आएगा, 20 डिविजन, करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए, वर्नियर स्केल के क्वेश्चंस।
अब स्टार्ट करेंगे स्क्रू वॉच या गेज जो भी आप बोलते हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं क्या है इससे। पहले मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। कुछ ऐसा होता है, समझ लेते हैं कौन क्या क्या है। ये जो है, ये आप बोलोगे ये है स्टड, इसको बोलते हैं स्टड। ये जो है स्क्रू है। यहाँ पे जो ऐसा स्केल दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, भी एक तरह का रेफरेंस स्केल, स्केल और पिच स्केल, पिच स्केल और मेन स्केल। यही आपका मेन स्केल। ये क्या है? स्क्रू है, स्टड है। ये वाला पार्ट भी जो इस साइड रहेगा, ये इतना पार्ट, ये भी इसका स्टड है। ये वाला स्क्रू। ये क्या है? इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ये वाली लाइन जो है रेफरेंस लाइन या रेफरेंस स्केल, पिच स्केल और मेन स्केल। यहाँ पे जो स्केल दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्क्रू कैप, स्क्रू कैप, स्क्रू कैप। इतना पहले आया इसको। अब देखो मेजर कैसे करते हैं लेंथ, वो समझना है। क्या करना है, कैसे मेजर करते हैं। तो अगर मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है तो मैं यहाँ पे रखूँ, या इसका डायमीटर मेजर करना है यहाँ पे रखूँ। थोड़ा इस, ये जो मूव कर, ये जो आपका स्क्रू दिख रहा है ये मूव करेगा, ये स्क्रू मूव करेगा। मूव कैसे करेगा? जब जब ये जो स्क्रू कैप है उसको रोटेट कराओगे, स्क्रू कैप को रोटेट कराओगे, तो रोटेट कराओगे तो ये वाली, ये स्क्रू मूव करेगा। और ये जो लीनियर स्केल दिख रहा है, रेफरेंस स्केल दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्ट होता रहेगा, एडजस्ट होता रहेगा। तो क्या किया यहाँ पे? पहले यहाँ पे ऐसा रख दिया, यहाँ पे ऐसा रख दिया, और इसको मूव करा के क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो एक बार फिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन पे आपको ये वाला लास्ट जो स्केल दिख रहा है, मतलब इसका डिवीजन दिख रहा है मेन स्केल का, उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये जो लास्ट वाला डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड करेंगे आप? मेन स्केल रीडिंग। उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? मेन स्केल रीडिंग। क्या किया समझो पहले, इसको फिक्स कर दिया। फिक्स किया तो यहाँ पे इसका कुछ लेंथ आएगा, यहाँ पे कुछ रीडिंग शो कर रहा होगा, और ये वाला डिवीजन है उसका लास्ट डिवीजन जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है। तो इससे आप क्या डिसाइड करोगे? मेन स्केल। इससे आप क्या डिसाइड करोगे? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। अब यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है, वो सर्कुलर स्केल का डिवीजन इस रेफरेंस लाइन से क्या कर रहा होगा? कोइंसाइड कर रहा होगा। कोई ना कोई डिवीजन जो होगा वो सर्कुलर स्केल का इस लाइन के साथ क्या कर रहा होगा? कोइंसाइड कर रहा होगा। तो अगर कोई भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा उसको बोलेंगे स्मॉल एन। क्या बोलेंगे उसको? स्मॉल एन।
तो फिर रीडिंग आप क्या लिखोगे, तो रीडिंग आ जाएगा फिर से वही n प्लस एन इंटू एल सी। ये वाली रीडिंग मेन स्केल रीडिंग इस पे आएगी, और ये n जो है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, वहां पे वर्नियर स्केल होता था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन coincides with any main scale division, any of the main scale division, है ना, मेन स्केल से या रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल डिवीजन नहीं बोलेंगे, रेफरेंस लाइन। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना, कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन के साथ जो डिवीजन कोइंसाइड होगा वो हो जाएगा एन, और एलसी मतलब लीस्ट काउंट, एलसी मतलब लीस्ट काउंट। आप एलसी इसमें कैसे फाइंड करते हो आगे बताता हूँ, एलसी कैसे फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा पिच। पिच क्या होता है, देखो जब आप एक स्क्रू कैप को एक कंप्लीट रोटेट करो, कंप्लीट रोटेट करने का मतलब 360 डिग्री से आपने रोटेट कर दिया, कंप्लीट रोटेशन का मतलब वही है 2 पाई। तो 2 पाई से जब आपने रोटेट किया, तो जैसे आप इसको रोटेट कराओगे, ये स्क्रू जो है कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, लीनियर डिस्टेंस, ये स्क्रू क्या करेगा, कुछ लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को बोलते हैं पिच, उसी को क्या बोलते हैं अपन, पिच। सबसे पहले अब इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लो, फिर जो टर्म्स आएगा उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको ड्रॉ कर लीजिए पहले। Sir, यस, sir, as we rotate the screw, the main scale will also rotate circularly. नहीं नहीं, कौन सा, ये वाला, Yes, sir. ये रोटेट नहीं, ये शिफ्ट होता रहेगा, ये शिफ्ट होता रहेगा। अच्छा, तो वो स्क्रू के ऊपर ही इसके बना है रोटेट, ना? समझो, इसके रोटेट करने से, इसके रोटेट करने से ये रोटेट नहीं होगा, आगे जाएगा या इस साइड आएगा, अरे इसके रोटेट करने से ये आगे नहीं जाएगा। ओके, अरे तो अगर मेन स्केल आगे पीछे जाता है बस। यस, सिर्फ ये लीनियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, लीनियर मूवमेंट होगा, ऐसा बोल, इसका क्या होगा, लीनियर मूवमेंट, उसका सिर्फ लीनियर मूवमेंट होगा इसका, है ना, ये ऐसा नहीं कि ये रोटेट करेगा। हाँ देखो यहाँ पे इसका क्या यूज है, यस, थिकनेस मेजर करने के लिए करते हैं, डायमीटर मेजर करने के लिए, ऐसा समझ सकते हैं, जनरली इसका यूज थिकनेस मेजर करने के लिए। तो अभी देखो इसका क्या यूज क्या है वो बता दें। Sir, is it measured for thickness of any wire? देखो, हाँ, थिकनेस ऑफ वायर वैसा करके, या डायमीटर ऑफ वायर बोल Okay. दीजिए। तो क्या होता है, क्या ये है, क्या है कि जब आपको जीरो एरर फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, जीरो एरर, तो जीरो एरर कैसे डिसाइड होगा, वर्नियर कैलिपर में क्या होता था कि उसका जॉ होता था, उसको क्या करते थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर देखेंगे कि जीरो एरर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब जीरो एरर मेजर करना होगा तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ। अब क्या करोगे, इसको रोटेट कराओगे और ये स्टड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो आपको ये चेक करना है क्या सर्कुलर स्केल का जीरो इस रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अगर कोइंसाइड हो रहा है, if the zero of the circular scale coincided with the reference line, then in that case zero error would be zero, मतलब no zero error, नो जीरो एरर। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा है, इट मींस देयर वुड बी सम जीरो एरर, देयर वुड बी सम जीरो एरर। तो जीरो एरर के लिए ये स्टडी जब कांटेक्ट में आएगा तभी आप देखोगे जीरो एरर, तभी आप देखोगे जीरो एरर। Sir, where is the zero of the main scale? जीरो ऑफ द मेन स्केल इस साइड रहेगा, Okay, sir. है ना, इस साइड रहेगा जीरो। और जीरो आपको जरूरी थोड़ी कि ये जो है विजिबल होगा, जरूरी नहीं, ये वाला लास्ट से अपने को मतलब है, बस लास्ट ये विजिबल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, विजिबल, क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है ये वाला स्क्रू, तो ये विजिबल होना चाहिए सर। तो कुछ कुछ टर्म्स है इसको डिफाइन कर लेते हैं अपन।
सबसे पहले आएगा पिच। तो पिच क्या होगा? द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस moved by the screw when it is given, when it is given one complete rotation, one complete rotation is called pitch, is called pitch of the screw। बेसिकली पिच क्या होगा? पिच हो जाएगा टोटल लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस moved by the screw upon number of divisions, upon number of rotation, number of rotation, number of rotation, number of rotation of screw cap, है ना? तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये जितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा उसको आप बोलेंगे पिच। सपोज ये इसका डिस्टेंस गिवन है, तो आप कैसे पिच फाइंड करोगे? तो टोटल लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू कैप, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू कैप। तो ये वाला क्या हो जाएगा? पिच। ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आएगा लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट एलसी। एलसी की वैल्यू क्या होगी? एलसी ये तो मिनिमम मेजरमेंट होता है, वो तो समझ में आ रहा है। एलसी हो जाएगा आपका पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, नंबर ऑफ डिवीजन जैसे होता है ना 1 MSD, वैसे ही पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। इसका मतलब पिच जो है वो क्या है? पिच जो होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ, या वन डिवीजन बोलेंगे, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। जैसे 1 MSD होता है, बेसिकली वही है ये। पिच क्या है? 1 MSD है, मेन स्केल डिवीजन है, तो उसी का 1 MSD मतलब उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? पिच के इक्वल हो जाएगी। उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? पिच के इक्वल हो जाएगी। कॉपी कर लीजिए। Sir, I've sent one photo on the group. Can you just see 1 second? यही है। Sir, I wanted to ask that देखो उस फोटो में जैसे मेंस के लिए एक स्लीव टाइप बना हुआ है ना स्क्रू के ऊपर, तो वैसे ही इसलिए इट डज नॉट मूव एज वी रोटेट द स्क्रू, दैट इज यस, रीडिंग वैसे ही मेजर करें। फिफ्टी डिविजन्स और 100 डिविजन्स, 50 और 100। 50 रहता है नॉर्मली, बट 100 भी होता है, 50 और 100। डन।
तो इसकी रीडिंग कैसे मेजर करेंगे? तो क्या किया, रीडिंग के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो जैसा था वैसा है। तो रीडिंग कैसे आएगी इसकी? तो रीडिंग अभी जीरो एरर कंसिडर नहीं कर रहे, तभी ये आ रहा है ना, n इंटू एल सी, एन इंटू एल सी। तो n की जो वैल्यू है, वेयर n क्या है? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो विजिबल होगी ना, वो वाली जो विजिबल होगी वो रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, इसको आप अब कभी कभी आप ऐसे फाइंड करेंगे, ये मेन स्केल रीडिंग होगी तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल या रेफरेंस लाइन स्केल बोल देता हूं, इनटू पिच, ऐसे भी फाइंड करेंगे। पिच क्या होगा? पिच जो है वो क्या होगा? वन डिवीजन की वैल्यू है, नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी n। तो कभी कभी आपको ऐसे भी फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवीजन रेफरेंस लाइन इनटू पिच। ये नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन रेफरेंस लाइन या ऑन पिच स्केल इनटू पिच, ऐसे भी फाइंड करना पड़ेगा। n क्या होगा? n जो है वो है नंबर ऑफ डिविजन्स, या ऐसे लिखो nth डिविजन्स of circular scale, nth division of circular scale lies over reference line। किससे कोइंसाइड कर रहा होगा? रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा होगा। और LC तो आपको पता है, LC क्या है? लीस्ट काउंट, तो आप ऐसे फाइंड करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में जीरो एरर गिवन है तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना? अगर जीरो एरर गिवन है तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीरो एरर, जीरो एरर। तो जीरो एरर कभी आएगा? लिखिए if the zero mark of circular scale, if the zero mark of circular scale does not coincide with the zero of the pitch scale or reference line, does not coincide with the reference line, है ना? when the studs are just touching each other, then the instrument is said to possess zero error, zero error पॉजिटिव जीरो, अगर जीरो से कोइंसाइड कर रहा है तो नो जीरो एरर हो जाएगा, इसलिए उसको पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा इस केस में? पॉजिटिव जीरो एरर में जीरो जो है वो रेफरेंस लाइन के बिलो लाई करता है, जीरो जो होगा वो रेफरेंस लाइन के बिलो लाई करेगा,
और नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, जीरो जो है वो रेफरेंस लाइन के अबव लाई करता है। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल if the zero of the circular scale lies below the reference line, then the zero error is positive. If the zero of the circular scale lies above the reference line, then the zero error is negative. क्या होगा, नेगेटिव। कॉपी कर, like in vernier scale we did n into LC to find displacement of vernier scale from a point. Over here how does n into LC concept work? जीरो देखो क्या होना चाहिए, ये जीरो जो है रेफरेंस लाइन के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन है, इसके साथ जो है सर्कुलर स्केल का जीरो मैच करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये वाला जो, ये देखो ये वाला, ये यहाँ पे है जो विजिबल इसका डिवीजन है में रेफरेंस स्केल का या मेन स्केल का या पिच स्केल का, वो ये है। तो ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला, ये अगर इसी के साथ मैच कर जाएगा तब तो n इंटू एल सी की वैल्यू कुछ नहीं आएगी, उस केस में उसका जो जीरो मैच करेगा इसके साथ। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है, तो इस डिस्टेंस का कुछ तो वैल्यू होगी, यस सर, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू किससे आएगी, जैसे जैसे ये जा रोटेट कर रहा है, कौन सा डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, वही ये डिसाइड करेगा n इंटू एल सी वाला टर्म, n इंटू एल सी वाला टर्म। जैसे उसमें डिसाइड करता था, ये वाला डिस्टेंस ही डिसाइड होता था, जो कौन डिसाइड करता था, n इंटू एल सी, इससे ये वाली वैल्यू आती थी। तो इसमें भी ये वाली जो वैल्यू है वो n इंटू एल सी से ही आएगी, वो n इंटू एल सी से ही है। The zero mark of circular scale does not coincide with the zero of the pitch scale. Zero of the pitch scale means यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और you can say reference line, and the studs are just touching each other, and the instrument is set to possess zero error. If the zero of the circular scale lies below the reference line, then the zero error is positive, and if the zero of the circular scale lies over the reference line, then zero error will be negative. यहाँ पे कर सकते आएगा, कॉपी तो करो, सब आए। क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना तो वो सब समझ में आता जाएगा कैसे आ रहा है क्या, तो कॉपी करो। पॉजिटिव जीरो बताऊंगा, उससे भी आएगा कैसे हो रहा है। पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। देखो यहाँ से
इस टाइप का है, ये मेन स्केल, ये रेफरेंस लाइन, ये वाला ऐसा है, और ये। अब देखो, अगर जीरो, इसका जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो अगर इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, अभी पॉजिटिव जीरो एरर को कंसिडर मत करो, ऐसे ही अगर ये जीरो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है तो इसका जो ये वाला डिवीजन होगा ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा और विजिबल होगा। क्या होगा? यहाँ पे होगा और विजिबल होगा। कभी जब ये जीरो यहाँ पे रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा तो ये जो मेन स्केल है उसका जो डिवीजन होगा जस्ट इससे कोइंसाइड कर रहा होगा और वो विजिबल होगा, तब उस केस में n इंटू एल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। अब देखो ये वाला जीरो अगर इस साइड है या इस साइड है तो उस केस में क्या होगा, ये वाली लाइन इसके साथ कोइंसाइड नहीं करेगी, कहीं यहाँ पे हो, कहीं इस साइड हो, इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रही होगी वो लाइन, तो कहीं इस साइड होगी वो लाइन, मतलब वो डिवीजन इस साइड होगा। तो इस साइड आ रहा है, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली रीडिंग कैसे फाइंड करोगे आप? n इंटू एल सी से फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे? n इंटू एल सी से फाइंड करोगे। जैसे पॉजिटिव जीरो एरर देख रहे हैं तो सपोज ये जीरो जो है कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ। जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ। जबकि जीरो को कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे। इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट में पहले से क्या है? एरर है। और कितने का एरर है? तो ये वाला एरर होगा, इतना लेंथ होगा। वो कैसे फाइंड करोगे? तो पॉजिटिव जीरो एरर, तो इस केस में जीरो एरर की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे, इसमें n प्लस n इंटू एल सी मत लिखना, क्योंकि n हमेशा जीरो ही रहेगा, उसको कंसिडर नहीं करना। ये अब डायरेक्ट ऐसा लिख दो, n इंटू एल सी, इसी से आ जाएगा, हमेशा इसी से आएगा। इस n की वैल्यू क्या है? तो देखिए ये जीरो है, 1 2 3, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 3, 1 2 3। तो ये आपने पहले काउंट कर लिया कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो 3 लिख दिया। जो भी एलसी की वैल्यू है आपने एलसी, जो भी एलसी की वैल्यू आपने क्या की? एलसी। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जीरो एरर आ जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर। ऑर्डिनरी स्क्रू गॉज जो होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm, है ना? आप कर सकते हैं 0.01 mm, तो 3 इंटू 0.01 mm, तो आंसर 0.03 mm हो जाएगा। ये आ गया पॉजिटिव जीरो एरर। यही क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर। यही क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर। तो आपको देखना है कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड था, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, lc की वैल्यू है आ जाएगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना रहा होगा? ये डिस्टेंस जो रहा होगा, ये डिस्टेंस कितना रहा होगा। नेक्स्ट, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, इसमें जो है जीरो का यहाँ पे लाई कर, अब यहाँ अगर सपोज मैं ऐसे अज्यूम कर लो, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है 100 है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल कितना है? 100, 100 है। तो ये कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा? तो जीरो ही 100 होगा ना यार। देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 ऐसा स्टार्ट हो रहा है, 99 100, फिर जीरो थोड़ी आएगा और फिर 1 थोड़ी आएगा। आ रही बात समझ? तो ये 100 ही क्या है? जीरो है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 to 100, 100 डिविजन्स। तो यहां से आपको कैसे करना है, तो देखो जीरो ये है, तो ये वाला कौन सा होगा? ये जीरो है। कुछ आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? 97। तो ये जीरो है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये कौन सा डिवीजन है। तो यही 100 है, तो ये कौन सा होगा? 99 98 98, ये 97, ये डिवीजन होगी। तो आपको नेगेटिव जीरो एरर कैसे फाइंड करना है, तो इस केस में जीरो एरर की जो वैल्यू होगी हो जाएगी
97 माइनस नंबर ऑफ डिविजन्स कितना 100, तो ऐसा हो जाएगा इनटू LC। मतलब ये वाली वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस केस में जीरो एरर की वैल्यू, जीरो एरर क्या हो जाएगा आपका n माइनस 100 इंटू LC। तो यहाँ पे क्या है 97 है, तो 97 माइनस 100 इंटू LC, तो -3 इंटू LC। तो -3 LC की वैल्यू अगर 0.01 mm है, तो ये वाली वैल्यू -0.03। क्लियर है? वैसे भी यहाँ से चेक कर सकते हो, ये वाला 0 पे है, तो ये और ये उसके अकॉर्डिंग ये वाला लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला लेंथ है। कॉपी कर। तो 3 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 100। नहीं अपन ऐसे ही एग्जांपल लिया है तो इसमें 3 आ रहा है, हमेशा 3 नहीं है। नहीं, इन द एग्जांपल ओनली 3 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए वी विल Yes. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100। कुछ भी हो सकता है। n इंटू LC से लेंथ नहीं ना, लेंथ कैसे फाइंड करोगे? लेंथ फाइंड करने के लिए वो तो देखना पड़ेगा ना कि इसमें कौन सा डिवीजन है, ये वाला है ना, वो भी तो कंसिडर करना पड़ेगा लेंथ फाइंड करने के लिए। तो फाइंड तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लेंथ इससे फाइंड नहीं कर सकते, लेंथ तो फाइंड कर सकते हैं, बट उसके लिए सिर्फ n इंटू LC नहीं आएगा ना। n इंटू LC सिर्फ ये वाली वैल्यू देता है, कौन सी, ये वाली वैल्यू। n इंटू LC कौन सी वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है बस, और कुछ नहीं है। बाकी इसमें कितने डिविजन आ रहे हैं वो सब उससे तो टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए वो डिवीजन आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग दैट विल बी कैपिटल M। तो n प्लस n इंटू LC, n प्लस n इंटू LC। सर, यस। so can we do 3 into LC directly and then we can put a negative sign नहीं because we वो know काउंट मत करना, वो फिर काउंट करना पड़ेगा ना 1 2 3 वैसा करके काउंट कर लो फिर, है ना। या तो ऐसे काउंट कर लो, लिख सकते हो -3 इंटू LC, बट काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 वैसा। नहीं तो फिर जो डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है -100 कर दोगे अगर जितने डिवीजन है उससे, तो फिर आंसर आ जाएगा। या फिर आप कैसा, आपको काउंट कर लो 1 2 3 3 आ रहा है, 3 डिविजन्स दिख रहे हैं 1 2 3 3 डिविजन्स दिख रहे हैं -3 कर लो, LC कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, वही है। The circular scale, the circular scale, circular head of a screw of a screw gauge is divided into 200 divisions, 200 divisions, and move 1 mm ahead
in one revolution, one rotation. Find the pitch. First question. Find the pitch and least count of screw gauge. Second, if the same instrument has a zero error of minus 0.05 mm and the reading on the main scale is 6 mm and that on circular scale given, suppose इसमें given 45 या ऐसा लिख, that on circular scale 40 and 45th division बहुत ज्यादा सही है, 45th division of circular scale coincides with the reference line. Then find the diameter of wire. Find कीजिए. जीरो एरर गिवन है, कैपिटल एन की वैल्यू भी गिवन. सबसे पहले आप लीस्ट काउंट फाइंड करो, पिच लीस्ट काउंट, फिर डायमीटर आएगा. $6.275. Correct answer. $6.275. 175 आ रहा है क्या? 275 आएगा. नेगेटिव है ना, नेगेटिव जीरो है. फर्स्ट क्वेश्चन, पिच की वैल्यू क्या होगी गिवन एंड मूव 1 मीटर अहेड इन वन रोटेशन. मतलब वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1 mm, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर नहीं 1 मिली. तो पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 mm. लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन number of divisions on circular scale. Number of divisions on circular scale. Number of divisions on circular scale. तो पिच की वैल्यू क्या है? 1 mm. नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है? 200. तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.005 mm. 0.005 mm. 0.005 mm. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. सेकंड, डायमीटर ऑफ वायर क्या आ जाएगा? डायमीटर ऑफ वायर ये जाएगा n plus n into LC minus zero error
माइनस 0 एरर। n की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 mm में ही रखो। n कितना है 45। LC की वैल्यू कितनी है 0.005 माइनस माइनस ऑफ 0.05 माइनस ऑफ 0.05। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.225 प्लस 0.05। तो यहाँ से आ जाएगा 572 पॉइंट, ये इतना आ जाएगा 6.275 6.275 mm 6.275 mm ये आंसर। तो इसका जो आंसर होता है सिंपल होता है, सॉल्यूशन जो है वो सिंपल होता है। Done? Next, the pitch of a screw gauge is 0.5 mm 0.5 mm and there are 50 divisions on circular scale. Divisions on circular scale measuring the thickness of a metal plate. There are 5 divisions. There are 5 divisions. There are 5 divisions on the pitch scale and 34th divisions. 34th divisions coincides with the reference line. Circular scale coincide with the reference line. Reference line. Calculate the thickness of metal plate. Calculate the thickness of metal plate. Calculate the thickness of metal plate. सबका 5 पॉइंट आ रहा है। 5 पॉइंट कैसे आएगा 5.34 5.34। पहले लीस्ट काउंट फाइंड करो 2.84। हाँ 2.84 आएगा। आई थिंक 2.84 कुछ ऐसा ही आंसर है। लीस्ट काउंट क्या है तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स
on circular scale. Circular scale. LC की वैल्यू आ जाएगी, पिच कितना है 0.5 mm अपॉन 50, तो ये आ जाएगा 5/100, 500, तो 1/100 मतलब 0.01 mm, ये हो गया लिस्ट। इसमें तो कोई जीरो एरर है ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, जीरो एरर तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कुछ, तो जीरो एरर फाइंड करने को कोई ये नहीं, तो रीडिंग क्या आ जाएगी पहले। क्वेश्चन में क्या दिया कि मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ मेटल प्लेट देयर आर 5 डिविजन्स ऑन पिच स्केल, वेयर n की वैल्यू क्या है, n जो है n क्या आ जाएगा, पिच स्केल इनटू ये नंबर ऑफ डिवीजन ऑन पिच स्केल, वो ज्यादा बेटर है, n जो है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन पिच स्केल इनटू पिच, तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है 5, पिच कितना है 0.5 mm, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 mm, 2.5 mm, तो यहाँ से रीडिंग क्या आ जाएगी, थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट क्या आ जाएगा, एंड n की वैल्यू क्या है, स्मॉल n क्या है 34, तो थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट क्या आ जाएगा n प्लस n इंटू एल सी, n प्लस n इंटू एल सी, n की वैल्यू क्या है 2.5 mm में ही है, n कितना है 34, LC भी mm में है 0.01, तो 2.5 प्लस 0.34, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.84 mm, 2.84 mm, तुम लोगों ने इसको 5 ले लिया लग रहा है, 5.34 ऐसा करके बताया है कि नंबर ऑफ, ये क्या दिया हुआ है 5 डिविजन्स ऑन द पिच स्केल, मतलब n की वैल्यू कैसे आएगी, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन पिच स्केल इनटू पिच, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन पिच स्केल इनटू पिच, उससे आएगा, कॉपी कर। The pitch of a screw gauge is 1 mm, 1 mm, and there are 100 divisions. There are 100 divisions on its circular scale. On its circular scale. When nothing is put in between, when nothing is put in between its jaws, yeah, it starts the zero of the circular scale
lies 6 divisions below the reference line. Below the reference line. When a wire is placed, when a wire is placed, when a wire is placed between the studs, two linear scale divisions are clearly visible. While 62 divisions on the circular scale coincides with the reference line. Determine the diameter of the wire. Determine the diameter of the wire. देखो क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, क्या है नहीं है, बट आप जब सॉल्व करोगे ना बहुत सिंपल हो जाता है इसका, सिंपल। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया आप समझ में, आंसर है। तो सबसे पहले आप जीरो एरर फाइंड कीजिए। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पहले लिस्ट काउंट आ जाएगा, यहाँ से पहले लिस्ट काउंट फाइंड कर लो, फिर नथिंग इज पुट इन बिटवीन इट्स स्टार्ट्स। The zero of the circular scale lies 6 division below the reference line. Below है मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। below है मतलब क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। पहले पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड कर लीजिए, फिर टू लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल, तो फिर 2 into पिच हो जाएगा, 2 into पिच, तो उससे कैपिटल एन आ जाएगा। स्मॉल एन की वैल्यू 62 है। सर कॉपी कर लो पहले क्वेश्चन। पिच की वैल्यू गिवन 1 mm, number of divisions on circular scale 100 गिवन 100। तो यहाँ से लीस्ट काउंट क्या आएगा, लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ से पिच कितना है 1 mm अपॉन 100, ये 0.01 mm। ठीक है, तो जीरो एरर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव जीरो एरर। क्यों आ रहा है, क्योंकि जीरो जो है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द रेफरेंस लाइन, n into LC। n की वैल्यू कितना, 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो 6 हो जाएगा। LC की वैल्यू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.06 mm। तो फिर रीडिंग क्या आ जाएगी यार, डायमीटर ऑफ वायर क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ वायर ये जाएगा n plus n into LC minus जीरो एरर। n की वैल्यू कितना डिवीजन है उसमें, तो टू लीनियर स्केल डिविजन्स मतलब 2 into 1, ये लीनियर स्केल डिवीजन है और ये क्या है, पिच है ना। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, लीनियर स्केल डिवीजन
इंटू पिच, साइड में लिख रहा हूँ मैं आंसर, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 mm, यही है 2 इंटू 1 प्लस n, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 62, LC की वैल्यू क्या है 0.01 माइनस 0.06, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.62 माइनस 0.06, तो 2.62 माइनस 0.06, आंसर आ जाएगा 2.56 mm, 2.56 mm। कॉपी कर लीजिए। क्लियर है? एनी डाउट? तो आई थिंक ये चैप्टर जो है आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, ये चैप्टर आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपना जो है एरर एंड मेजरमेंट कंप्लीट होता है। एक बार मैं बुकलेट में देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, अगर बुकलेट में इसके सम्स हो। बैच 1 का हो चुका है, तो तुम्हारा भी हो जाएगा कभी। सर बैच इसके 1 में प्रॉब्लम्स का डिस्कशन बचा हुआ था। हाँ तो हो जाएगा ना, अब उसमें हाँ। क्या है, इजी तो है वो, उसमें कुछ क्या उसमें डाउट्स आ रहा है क्या तुमको? सर इन द बुकलेट सम थिंग्स आर गिवन व्हिच यू हैवंट स्टडीड, कुछ तो फॉर्मूला आता नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो रहा हाँ तो फॉर्मूला मतलब कुछ भी डायमेंशन पूछा तो उसने फॉर्मूला तो पूछा है, मतलब गिवन ही दिया होगा कुछ ना कुछ। नहीं है फॉर्मूला, नहीं है तो जिसका फॉर्मूला नहीं आता है वो उसी का आंसर नहीं आया होगा, बाकी तो आंसर आ ही है। सकता है यस कुछ, सर, यस, वो नहीं है ना? है। यस, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है इस बुकलेट में एरर। हाँ है एरर, सर ठीक है। हाँ जी, सर जो पिच होता है दैट इज 1 MSD, नो, इक्वल टू 1 MSD। पिच जो होता है, हाँ पिच इक्वल्स टू 1 MSD। लाइक व्हेन आई रोटेट द स्क्रू 360 तो फिर 0 से 1 तक चले वन वो जाएगा। 1 MSD कवर करेगा। अच्छा, ओके ओके सर। और वो n into LC वाला यू कैन टेल प्लीज, दैट एग्जांपल लेके। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, अगर इसका 0 यहाँ पे आएगा, इसका 0 इसके साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब ये वाले जो लीनियर स्केल दिख रहा है ना तुमको, ये जो डिविजन्स दिख रहे हैं, ये डिविजन्स यहाँ पे तो रहेगा ही, यहाँ पे एक कोइंसाइड करेगा और विजिबल होगा, यहाँ पे यस रहेगा और विजिबल होगा। विजिबल होगा मतलब ये वाला डिस्टेंस कुछ होगा नहीं, इसका कुछ डिस्टेंस n इंटू एल सी कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 कोइंसाइड करा, ये डिवीजन विजिबल है। लेकिन अगर ये ऐसा है, इस टाइप से है, ये डिवीजन यहाँ पे है और इस साइड कोई डिवीजन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कैसे आप मेजर करोगे, तो ये डिस्टेंस इसी से आएगा, कितना 0 आगे गया है उसी से आएगा ये डिस्टेंस, ये वाला पार्ट। सर आप एग्जांपल देख के बता सकते हो जैसे अरे एग्जाम्पल अभी नहीं किया, अभी क्या किया था, पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, इसमें क्या किया था, एग्जाम्पल नहीं था तो क्या था, क्या सर बता। लाइक 100 मिलीमीटर, मतलब 1 mm आ जाएगा अगर हम 100 डिवीजन करें ये वाला जो तो। डिस्टेंस है, समझो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, उसको कैसे मेजर करें, ऐसे मेजर करें। यस अगर यही 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली लाइन जो है ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यस 0 यहाँ पे आ गया मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो आप ये डिस्टेंस को कैसे मेजर कर रहे हो, इस साइड से मेजर कर रहे हो, इस डिवीजन को काउंट कर रहे हो, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आ जाएगा। अच्छा ओके, तो कितना मूव हुआ वो काउंट कर लो। यस, ओके, थैंक यू। ठीक है। एक बार बुकलेट में देखता हूँ, तुम भी देखो, यूनिट एंड डायमेंशन वाले पार्ट में ही होगा एरर एंड मेजरमेंट, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, उसके क्वेश्चंस देखता हूँ मैं, बता देता हूँ एक बार, ग्रुप पे आपको मिल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो उस क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।